processing, and we talked about what is digital, we talked about images a little bit, and we are talking now about the processing part. So in image processing, actually this term has seen a lot of evolution in the terms that earlier it was said to be image processing in terms कि अगर हमारा output भी image है, input भी image है, तो वो image processing है, right? So now let's understand what do you understand by processing. So low level processing एक सबसे पहले जो basic DIP start हुआ था, so it started with low level image processing, where my input is also image and my output also I get as an image. So example क्या है? Noise removal. Noise क्या होता है? जैसे I'll show you. So if I have an image like this, so you can see there's a lot of noise. Noise क्या हुआ? कुछ भी anything which is disturbing from the original image is termed as noise. It could have various forms. Noise पे पूरा एक chapter dedicated है. So there are various kinds of noises, but this is noise. So if I am able to remove this noise and get a smooth image, then I'm getting the input is an image, output is also an image, and I have removed noise. So it is a low level processing of image. So image processing in the low level. Image sharpening. Sharpening क्या हुआ? कि कुछ blurred सी image है, maybe it's not that sharp. You know you are using a lot of colors these days in pictures that you make, right? अगर picture खींचते हो तो क्या करते हो? You can sharpen the image, you can contrast, change the contrast of it. These are, and the output is still an image. So that is an example of low level image processing. Please feel free to stop, ask questions wherever you have a problem. There's no problem in asking. Please feel free to ask. फिर हुआ mid-level processing. Now the input here is an image and the output is attributes. इसका क्या मतलब है कि okay, let's take an example of segmentation. This kind of an image. So suppose I have image of a fruit, or I'm trying to segment it. Any picture and I have a region of interest. So that is known as segmentation. जैसे इधर है, I'm trying to segment the strawberries. तो इधर strawberries आ गई. ये इस तरह के examples. So इसमें क्या हो रहा है? Input is still an image, output is also an image here that you see. But अगर हम actually जब segmentation करते हैं, so we do it from attributes. Now what are attributes? I explain a little bit of attributes. Suppose iris flower. Can everybody see this image? Image दिखती है? ये क्या है? एक flower है, iris flower है, जिसके कुछ attributes है. इस इमेज से और बेटर क्लियर होगा. So see, है ये तीनों iris flowers, but they are different species. There's a versicolor, this is virginica, and this is setosa. अब इनमें difference क्या है? सबको पता है petal और sepal कुछ होता है. सबको पता है what are petals? Petals क्या हो गई? Flowers की जो petals है. और sepal जो एक नीचे green color का generally एक छोटा सा part होता है sepal का, इस flower में वो purple है. So everybody you can see there's a petal and there's a sepal here. Sepal भी बोल सकते हैं जो भी है. So it's a proper noun. Sorry, common noun है. So petal and sepal. अब हमने इसमें क्या attributes लिए? Petal की length, petal की width, sepal की length, sepal की width. And based on this, so you can see I have sepal length, sepal width, petal width, और तीन हमारे पास classes हैं.
So अब क्या हो रहा है, बेस्ड ऑन दिस आई एम ट्राइंग टू, मैंने इस तरह के 150 फ्लावर्स लिए सपोज, एंड आई रिकॉर्ड 50 इंस्टेंसेस ऑफ ईच. 50 वर्सिकलर है, 50 वर्जिनिका है, 50 सेटोसा है, सबके ये 4 एट्रीब्यूट्स रिकॉर्ड कर लिए. तो इस तरह का डेटा सेट आ गया, सिपल, लेंथ, विड्थ, पेटल लेंथ, सिप, और कौन सी स्पीशी है ये मेंशन्ड है. सो 50-50 ऑफ ईच हमने 150 है, एंड हर एक का 50-50 हमने ले लिए. वर्सिकलर है, फिर वर्जिनिका है, इस तरह से, और शुरू में सेटोसा था. सो 50-50 सबके ले लिया, और सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ ले लिया, और इसके बेसिस पे वी आर एबल टू मॉडल इट वेरी वेल टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश. कोई नया फ्लावर आए, सिर्फ इसका हम ये मेजर कर ले तो भी हम उस मॉडल से बता देंगे कि ये कौन सा वाला फ्लावर होगा. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? कोई प्रॉब्लम? सो इसमें क्या हो रहा है, so you are trying to recognize the object, actually not recognize, classification हो गया, ये segmentation. output क्या हो गया, attributes हो गए. so हमारे पास attributes आ रहे हैं as outputs. so after image processing, after doing this, I can get attributes. so हमारे पास ऐसे कुछ algorithms होंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, in which we'll be able to take an image and then we will be able to find out the attributes like this. अभी तो हमने measure करे हैं ये वाले attributes physically, but बाद में using image processing we'll be able to measure the attributes, and ultimately उससे हमें क्या मिलेगा, we will be able to do certain intelligent operations. so we'll be able to do segmentation, might be able to do object recognition. faces का recognition लोगों ने देखा होगा, तो face कैसे recognize करते हैं, any idea? face कैसे होगा recognize? फेस में कौन से फीचर्स होंगे? Can anybody think of the features which can be in a face? So these are the features which are extracted. You know, the length of the eye, the distances. Basically, you're trying to measure distances between the pupils, distance between the hairline and the forehead. फिर उसके बाद nose का length, lips का width, mouth का, cheeks का width. You know, these are the distances. So these are the attributes. Are you able to understand this? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तो yes, इसी तरह से हमारा फिर उसके बाद हम recognize करते हैं. तो हम लोग based on this we try to determine कि ये face है. ठीक है, कैट के फेस अलग होगा, तो ह्यूमन फेस अगर देखते होगे कैमरा में फोटो खींचते हो, अपने आप एक चारों तरफ देयर इज अ ग्रीन square which comes around the face. So these kind of attributes try to recognize the face. Then there's something called a high level processing in which few input attributes. अब हम attributes को input कर रहे हैं and we understand. Understand में क्या होगा? अब हम face recognize कर लेंगे. Okay, this person is this person, right? You're trying to recognize. So here you're trying to map these pictures with the people here. You're trying to recognize them. So this is an intelligent system which is taking your inputs as your attributes and the output is of understanding. So example is scene understanding, autonomous navigation, even this face recognition. So scene understanding में क्या हो गया? You must have seen ये आजकल होता है ना, there's an automatic to prove that you're not a robo. तो क्या करते हैं कि mark the pictures with cars in it, mark the pictures with traffic lights in it. So those kind of applications also do rely on high level processing because each and every picture में the computer is processing behind it. Nobody is telling in the pictures कि ये वाली pictures में होगा. Automatically जो भी pictures आ रही हैं उनमें से computer is also recognizing and it is understanding the scene and it is asking you to understand. Autonomous navigation में the car is traveling by itself, it is detecting the obstacles and it is changing the path. It is looking at the routes possible कितने कितने routes हैं कोई एक जगह जाने के लिए. Then understanding the traffic, it is automatically able to determine कि मेरे को ये वाला path लेना है, right? So this is an intelligent system which is based on image processing again, and this is high level processing.
earlier we used to distinguish by saying that ये सिर्फ इतना part जो है वो image processing है, बाकी को बोलते थे computer vision. But now everything is basically that differentiation has been finished, and digital image processing kind of encompasses everything. So uses of image processing, there are lots and lots of image processing uses. So let's see one by one. अभी आगे देखेंगे, इनको अभी आगे डिस्कस कर लेंगे एक एक. Now history of image processing. So just for the sake of completeness, I'll talk about it briefly. So in the earlier 90 to 80s, एक बार सबसे पहले कैसे picture transfer हुई थी. So Bartlane cable picture, this was the picture which was transmission. एक बार picture first जो transfer हुई थी by submarine cable between London and New York. So how was that picture transfer? It was first coded for cable transfer. तो इसमें क्या है, देखो pixels में पहले divide करेंगे, कितने number of levels होंगे उसके हिसाब से हर एक pixel का एक code होगा, depending on if it is 8 bit तो उसमें उसके हर एक के 8 bits आ जाएंगे, 16 bit 4 bit जो भी है, जितने number of colors के ऊपर differentiate कर पा रहा है. फिर उसके बाद they were transmitted, each and every bit was transferred on the line, and then it was reconstructed at the receiving end, and then print हुई थी. So this was the first in 1920s where it was started. Then in mid to late 1920s, basically the resolution increased. You can see here, this was probably, if I remember correctly, a 4-bit kind of an image. ज़्यादा changes, ज़्यादा tones नहीं थे. अच्छा और कम होगा because 15 tone digital image ये वाली है. So this was probably even maybe 2 tones or whatever. 2-bit to 4 tones होंगे शायद इसमें. And then it was basically improved to the number of bits per pixel. That was done in late 20s. Then 1960s, improvement in computing technology and the onset of space race led to surge of work in DIP. Now places where you're not able to go, so places which are remotely accessed, their image processing is a very, very important source of being able to understand. So astronomy में बहुत ज़्यादा use है because we can't go and see. Similarly, remote sensing में बहुत ज़्यादा use है because we can't take pictures of the entire land from the naked eye. We have to go up and we have to take pictures and understand those scenes. So that is why it started like this. A moon picture was taken by Ranger 7, and it was basically, this was then processed. So these are the first few instances of image processing. 1960s may see basically everything was dependent on the hardware, because earlier the capacity in terms of electronic devices was not there. So that is why these technologies could not pick up. धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, जैसे we could use high processing of power of computers, we were able to increase the resolution, increase the speed, and have been able to do everything in image processing because we have been able to do major work in terms of electronics also. So Moore's law सबने पढ़ा होगा, that is actually contributed to the evolution of DIP. Then image processing started being used in medical applications, and आजकल it is a huge field of research as well as practical applications, because you can see these CAT scans, these PET scans, MRIs, fMRIs, जितना भी जो image processing में जितना practical work हो रहा है in medical field, that is enormous. So for a human to be able to see inside the body is not possible. So you have these image processing techniques which are able to understand your brain, your every part, even your ultrasounds, the baby inside the womb, everything can be seen through image processing. So ये CAT scan का एक slice है, which was used to study the head of a particular person, and Nobel Prize भी मिला था इनको for this breakthrough. Since then, it has grown by leaps and bounds. MRIs आजकल non-invasive भी है. They don't harm also because X-rays में everybody knows CAT scans में multiple X-rays हैं. So it is very harmful for the body. But MRIs are not harmful also. Anyways, so now then in late 1980s,
Then they have been used in all these movies that you see. So image enhancement restoration में हो जाएगा. You've seen Photoshop. You can enhance images. You can restore them. कहीं कोई एक image है, जैसे आजकल कहाँ use हो रहा है, कोई एक artifact है, कोई एक monument है, which was which has broken over years. Archaeologically अगर हमें restoration उसका करना है, हमें सर्वे करना है, वॉक थ्रू देखना है कि हम्पी में कैसे लगता था, हाउ वर द टेम्पल्स बिफोर दे वर एक्चुअली डिमोलिश्ड, या बिफोर कहीं कहीं कोई स्ट्रक्चर्स खराब हो गए हैं तो उनको रेस्टोर करने के लिए कैसी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए. एवरीथिंग इज डन बाय इमेज प्रोसेसिंग. आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, ऑल दीज ह्यूमन, वी विल टॉक अबाउट दीज, अभी धीरे धीरे आते हैं. सो इमेज एनहांसमेंट सबसे पहले क्या है, जैसे ये वाली एक इमेज है, अब मैंने डिजिटल एक इमेज एक्सरे ले लिया. पहले क्या होता था, एक्सरे खराब हुआ तो दोबारा से एक्सरे लेना पड़ता था. आई डोंट नो इफ यू पीपल रिमेंबर दैट टाइम, बट व्हेन वी वर यंगर वी वर टोल्ड कि एक्सरे ठीक नहीं आया है, दोबारा से आपको एक्सपोज करेंगे, एक्सरे से फिर से लेंगे. बट अभी क्या है, यू कैन जस्ट, इवन इफ योर पिक्चर इज नॉट वेरी गुड, यू कैन डिजिटली चेंज इट एंड you'll be able to see all the details. So you don't have to go through that harmful radiation again. So this is use of image processing. If I have an image like this, does anybody know ये क्या है? Anybody can relate? ये क्या चीज है? चेस्ट का. ये वाला बेटा, ये this one. मे भी प्रोसेसर लग रहा है. हाँ, करेक्ट. सो अगर कोई परफेक्ट, तो अगर हमारे पास, अब देखो कितने छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज बाय द नेकेड आई. तो अब और इस तरह का अगर इमेज आ गया, इसको क्लियर कर लिया, आई विल बी एबल टू सी दिस, एंड इसमें कहीं पे भी ट्रांजिस्टर मिसिंग होगा बिफोर एक्चुअली सेंडिंग दिस बोर्ड फॉर फर्दर सेलिंग. ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स बने होते हैं, कुछ पार्ट मिसिंग है तो वो फेंक देगा, उसको आगे डालेगा ही नहीं, पैकेज ही नहीं करेगा. सो इस तरह से ये इस तरह के यूजेस है. कोई इमेज है वॉश्ड आउट है, ओवर एक्सपोज्ड है, तो उसको ब्यूटिफाई करने के लिए आप कर सकते हो. यू आर नॉट यूजिंग, अब इतनी ऊपर हो, आपने फोटो खींची, अब आप दोबारा ऊपर नहीं जा सकते हो. मे बी समबडी इज जंपिंग फ्रॉम द ग्राउंड, जैसे वो ऊपर से होता है, स्काई डाइविंग कर रहा है, तब उसने फोटो ली है. यू कैन कैप्चर दोस मोमेंट्स अगेन. यू कैन यूज इमेज क्रॉसिंग टू बी एबल टू improve the image. हबल टेलीस्कोप, इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ है. हबल इमेजेस ये बेसिकली टेलीस्कोप है, and it can take images at a very distant objects. So हबल से जो भी images capture होती थी, उनको image processing की टेक्निक से improve करा जा सकता था, to be able to see galaxies around us. तो इसलिए हम लोग इसको इधर यूज करते थे. Artistic effects, you've seen a lot of them in lots and lots of movies. You are seeing VFX and everything. So these are done through image processing only. So I'm sure you people know about this. फिर उसके बाद मेडिसिन में अभी मैंने यूज बताया. इसी तरह से अभी ये जैसे डॉग हार्ट का MRI है, then you detect the ages using this MRI, right? So ग्रे लेवल जो है टिश्यू डेंसिटी को रिफ्लेक्ट करता है. तो जहां जहां हाई टिश्यू डेंसिटी है, you will be able to see, and if there's a change in whatever you're expecting, then the wet can make an inference. CT image में basically क्या होता है, मैंने बोला multiple x-rays होते हैं. Just to understand it briefly, suppose ये image मेरे को लेना है, x-ray मैंने इधर से पास करा. So x-ray जब पास करा इधर से A पार्ट से, और x-ray मैंने इधर से भी पास करा, I will get a view of this from this side. इधर से देखेंगे तो क्या हो गया, ये एक्सरे इधर से पास करा, सारे में ब्लॉक्ड है, तो 1 2 3 4 ऐसे आएगा. इधर से पास करा तो 1 2 ब्लैंक होने चाहिए, एक ये गलत है, ये यहाँ पे भी ऐसे आना चाहिए पर्पल. फिर ये इधर से जाएगा तो ये सेम आना चाहिए, इधर से और ब्लैंक आना चाहिए. अलग अलग व्यू से अलग अलग कैप्चर कर रहे हैं, राइट? इधर से देखोगे तो ये सारे फिक्स्ड होंगे, ऑल विल बी ब्लॉक्ड. इधर से देखोगे तो फिर से ऐसे आएगा, इधर से देखोगे फिर से ऐसे आएगा, इधर से सारे ब्लॉक आएंगे. तो इस तरह से अलग अलग साइड से अगर हम
वी टेक एक्सरेज एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट इस तरफ, बिकॉज हमारा एक्सरे इधर से फायर कर रहे हैं, इधर हम कैप्चर कर रहे हैं, इधर से फायर करें, इधर कैप्चर कर रहे हैं, इधर से फायर करेंगे, इधर कैप्चर करेंगे, इधर से फायर करेंगे, इधर कैप्चर करेंगे। जब हमारे पास हर डायरेक्शन का हमारे पास एक्सरे का इमेज आ जाएगा, we'll be able to reconstruct this. Are you getting the point? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that is what is happening here. Similarly, MRIs में भी you have rotating beam है, एक्चुअली मैग्नेट चारों तरफ होता है और रेडियो वेव्स होती है। ये MRI नहीं है, ये इसी का है, कैट स्कैन का ही है, ये MRI नहीं है, सॉरी, ये कैट स्कैन ही है। हाँ, क्योंकि एक्सरेज नहीं यूज होती है कैट स्कैन और MRIs में। सो इधर एक्चुअली क्या हो रहा है, व्हेन यू आर, सो दिस इज रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब, यू आर फायरिंग फ्रॉम दिस एंड यू आर कैप्चरिंग दिस साइड, एंड ये रोटेट कर करके एक एक एंगल से फायर करेगी और एक एक अदर साइड से सेंसर्स हैं वो सब डिटेक्ट कर लेंगे। सो अल्टीमेटली यू हैव स्लाइसेस, और ये आगे पीछे भी जा सकती है ट्यूब, तो हर स्लाइस का गोल घूम घूम के हर एक का पूरा विजुअलाइजेशन हर एक साइज का ले गया, फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट कर लिया। सो यू विल बी एबल टू सी योर कैट स्कैन। अंडरस्टूड दिस? एनी प्रॉब्लम? पहले देखो इधर घूमे, इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, देखो पहले क्या है, सपोज लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट, ये वाली स्लाइस को हम देखते हैं, ये वाला पार्ट, तो इधर से फायर करा, इधर से कैप्चर कर लिया, फिर ऐसे घूम रही है गोल गोल, तो ये पार्ट क्या है, रोटेट कर रहा है, ऊपर गया, ऐसे करके हर पार्ट से इसने फायर करके ऑपोजिट साइड पे कैप्चर कर लिया, तो ये वाला पूरा सेगमेंट हो गया। फिर ये आगे बढ़ गई रिंग, फिर ऐसे इसको कर लिया, फिर इसको कर लिया, फिर इसको कर लिया, ऐसे करके पूरे हेड को स्कैन करके और फिर उसको स्टिच कर लिया। सो वील बी एबल टू गेट अ कैट स्कैन। Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then वही spiral scan वाला part हो गया. Then you have MRIs, you have PET scans, all these PET scan इस तरह से हो गया. अब क्या होगा कि इसमें ultimately you can see here we have certain images and इसमें अलग-अलग colors है. So कलर्स को कैसे हम देते हैं, मे बी हमारा 0 to 255 हमारी रेंज थी, 8-bit इमेज है, सो आई हैव 0 to 255 वैल्यूज ऑफ ग्रे लेवल कमिंग हियर। सो मैंने बोल दिया कुछ भी, मैंने एक मैप असाइन कर दिया कि 0 to 220 जो होगा उसको ग्रीन में दिखाएंगे, 20 to 100 को ब्लू में दिखाएंगे इंटेंसिटी वैल्यू, 100 to 200 को रेड दिखाएंगे, 200 to 255 को येलो दिखाएंगे, और फिर उसके बाद मैंने इनके अलग अलग कलर्स आ गए, तो आई विल बी एबल टू डिसाइफर कि किसकी कितनी। यस सर, हेलो जी सर। हाँ, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो कलर मैप से फिर आगे कैसे करते हैं वो डॉक्टर्स देखेंगे कि क्या करना है उसका, राइट। इस टाइम कौन आ रहा है? ओके, देन GIS, ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन करा था। सो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेजेस फ्रॉम सैटेलाइट। सो मे बी आई हैव अ लैंडसैट इमेज, कल आई हैड शोड यू। सो लैंडसैट में क्या होता है, 7 बैंड्स होते हैं। किसी बैंड में, अब ये देखो ये वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी 4, 5, 7, एटलीस्ट 5 में सबसे ज्यादा डिस्टिंग्विश हो रही है। एवरीबडी कैन मेक आउट, देखो 5 में सबसे ज्यादा क्लियर है, 4, 5 में,
और इधर तब भी कंफ्यूजन है बिकॉज ये वाला पार्ट है, इधर एकदम क्लियर है वाटर पार्ट. सो व्हाट डू वी डू कि इधर ये है, फिर हमारा वेजिटेशन हो सकता है 6 में क्लियर हो. दैट यूल हैव टू सी कि कौन सी बैंड का ये इमेज है. एंड वो अगेन गोइंग बैक टू द स्पेक्ट्रल मैप, ये वाले मैप से we'll be able to distinguish कि कौन सा बैंड कौन सा को रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसके हिसाब से we'll be able to decipher. So this is known as geographical information systems and this is extensively used to manipulate satellite imagery. इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, टेरेन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. टेरेन क्या हुआ, लैंड, जो हमारी जो भी लैंड है ऑन द बेसिकली ऑन द अर्थ सरफेस उसको कह लेंगे टेरेन, एंड उसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं. मीटरोलॉजी अगेन वी आर ट्राइंग टू डिटरमिन यूजिंग हरिकेन्स का कहाँ आ रहे हैं हरिकेन्स, ये सब स्टडी करने के लिए इसका आई कहाँ पे है. सो आई इज वेरी क्लियरली विजिबल हियर. सो the location of this in terms of GPS can be given using GIS. This is a very interesting application. Nighttime lights of the world data set. So people, we are trying to find out कि global inventory of human settlements, कहाँ कहाँ लोग settled हैं, because ठीक है हमारा अपना खुद का एक reach होता है, but if I am able to take a satellite image और रात में मैंने night imagery लिया, so generally people wherever they are living they will have lights, you know, so lights आपकी on हो गई, so इस तरह की image दिखेगी. Looking at that, this is इधर आपको पता है कि इधर कुछ नहीं है, so probably this is the forest area. Even if people are living, maybe they are living, but there's no strong light here. So we assume that this is devoid of population. These are the areas where population is spread. So you are able to do a very nice change studies, the change of pattern कि कहाँ लोग रहने लग गए हैं, कहाँ settlements increase कर रहे हैं over a period of time using such images. So if I just want to make a survey कि Africa में over the past years कहाँ कहाँ लोग settle कर रहे हैं, which are the areas which are getting popular. So you can take the night light imagery of over a period of 10 years, over a period of 20 years, 30 years, and you'll be able to see the change. I hope this is clear. So you take a census and you try to understand, जो हमारा census है वो क्या होता है, population का एक estimate देता है, इससे हम compare कर सकते हैं. Then industrial inspection, so जैसे मैंने ये वाला image बताया था कि inspection हो जाता है automatically. इसी तरह से ये tablets का blister है, blister बोलते हैं tablet के pack को. अगर कोई भी medicine हो सकता है इसमें ना filled हो, by mistake रह गई है, then that package will not be shipped. Similarly, bottles में एक level है, अगर ये कम है, this will be thrown out, it will not be shipped. Then this is a plastic package. प्लास्टिक जो कवर होते हैं तो उसमें कहीं जनरली देयर इज अ परमिसिबल नंबर ऑफ होल्स इनसाइड दैट. ये बेसिकली बबल्स हैं जिसको वीक बनाते हैं. सो नंबर ऑफ बबल्स अगर ज्यादा हैं, यू विल थ्रो इट आउट, यू विल नॉट शिप बिकॉज इट विल ब्रेक इजीली. ये केलॉग्स है बेसिकली, योर कॉर्नफ्लेक्स या चिवड़ा, कुछ भी इस तरह से कॉर्नफ्लेक्स है. यू वेरेवर यू सी कि बैच लिया, इमेज में कुछ ब्लैक ब्लैक अगर ज्यादा दिख रहा है, यू विल थ्रो इट आउट. दिस इज एन ऑक्यूलर लेंस. ऑक्यूलर लेंस जो हमारी आंखों में लेंस लगाया जाता है कैटरैक्ट change करने के लिए या maybe for vision improvement. If there are problems inside which are not visible in the lens, by visual inspection, then you can throw this ocular lens. So these are various inspections, these are various applications where image processing is actually being used. PCBs का inspection करना है. Law enforcement, आजकल सबको पता है क्या होता है, traffic lights पे people have stopped, even in Kanpur, people have started stopping and started waiting. तो क्या क्यों होता है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली चालान कट के आ जाएगा, क्योंकि क्या है, आपका ये प्लेट ले लिया, फोटो ले ली, उसको रीड करा OCR से. OCR किसी को पता है क्या होता है? Anybody? What is yes, OCR? से टेक्स्ट को मैम एक्सट्रैक्ट करता है. Very nice. So it is optical character recognition. So अगर हम लोग बहुत यूज करते थे स्कूल वूल में, कॉलेज में भी, पता नहीं करते हो तुम लोग की नहीं, बुक्स आजकल ऑनलाइन होती है, हमारे टाइम पे ऑनलाइन नहीं मिलती थी, तो हम लोग क्या करते थे, बुक स्कैन करते थे, OCR में कन्वर्ट करा,
उसको फिर उसके बाद टेक्स्ट लेके और उसको उठा के असाइनमेंट में चिपका देते थे. सो दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू. अगर जनरली सब करना होता था टेक्स्ट में कहीं आपको देना है तो टेक्स्ट ऐसे कन्वर्ट कर लेते थे. सो दिस इज now being practically used in law enforcement. Number plate recognition, automatic toll systems. अब सबको पता है एक टैग सिस्टम आ गया है. टैग्स में क्या है कि अगर टैग्स नहीं भी हो तो भी आप इससे कर सकते हो. इमेज क्रॉसिंग ही उसमें भी यूज हो रही है और आपको पता है ये कार इसके नाम पे रजिस्टर्ड है, ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे. फिर फिंगरप्रिंट रिकग्निशन, ये तो हर जगह यूज हो रहा है, सबको पता है. आई कैन यू डिस्टिंग्विश फिंगरप्रिंट कैसे समझते कैसे? तो मेरे को बताएगा कि फिंगरप्रिंट में क्या ढूंढते हैं. मैम पिक्सेल्स मैच करते हैं, एवरी अच्छा. सिंगल पिक्सेल. नहीं, दैट इज गोइंग टू टेक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. एक होता है मिनूशियाज, बताते हैं. सो मिनिशिया देखो ये वाला है. So for every image that you have, इसमें क्या होता है कि आपकी इमेज में आपकी जो ये है फिंगरप्रिंट, so everybody knows it's unique. किसी में देखो ये वर्ल होगा, राइट? पैटर्न सबके बड़े यूनिक है. या तो एक ऐसे गोल गोल वर्ल होगा, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, शंख और कुछ बोलते थे, पता नहीं. हाँ, चक्र, चक्र और शंख. हाँ, तो वही वर्ल्स वाला होता है. एक चक्र को शायद ये बोलते हैं, वर्ल बोलते हैं. सो यू कैन सी जहां पे भी ये जॉइंट है. अब क्या होता है, ये जो 3 फोक आ रहे हैं इसको हम लोग कहेंगे मिन्यूशिया. सो मिन्यूशियाज ढूंढते हैं पूरे में, जहां जहां पे भी फोकिंग हो रही है. जैसे ये वाला पार्ट है जहां पे 3 पार्ट ऐसे हो रहे हैं, जहां पे भी ये वाला है. जैसे एवरीबडी सी, इनको हम सिर्फ करेंगे. अगर हम सबको ट्रैक करेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक पिक्सल को मैच करना पिक्सल बाय पिक्सल, it will take a long processing time, and you know that we can't waste time. These are very fast applications. So you just look for minutia here. Minutias देखते हैं, उनका ओरिएंटेशन देखते हैं किस एंगल पे है वो. फिर उसके बाद स्टेप 2 में उसको हम पहले तो हमने एरिया निकाल लिया, फिर उसके बाद ओरिएंटेशन, कैसे वो घूम रहा है, इस तरफ जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला ऐसे जा रहा है, हर जगह का मिनुशा निकाल लिया. फिर उसके बाद पोजिशनिंग कर ली प्रोटोटाइप की, अलग अलग तरह के बना दिए. एंड देन इस तरह का प्रोटोटाइप बनाया. फिर हमने क्या करा, इसका फिर उसके बाद वी ट्राई टू मैच इट. अभी वील गेट इनटू द डिटेल्स लेटर ऑन. बट इसमें क्या है कि अभी हमें जो भी नया फिंगरप्रिंट आएगा उसके मिनूशियाज एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसको गोल घुमा के ओरिएंटेशन सेम करेंगे. अगर देखा होगा सो इवन इन योर फिंगरप्रिंट ऑफ योर फोन की फिंगरप्रिंट यूज करी है किसी ने? यस मैम. हाँ, उसमें कहते हैं ना थोड़ा सा टेढ़ा करके रखो, बार बार रखवाते हैं जब वो शुरू में बना रहे होते हैं. when they are trying to establish you as a user, they make you press बार बार 5-6 बार रखवाते हैं ताकि आपका पूरा फिंगरप्रिंट एनालाइज हो जाए. और फिर अगर आप बिल्कुल उल्टा करके रखोगे तो आपका फिंगरप्रिंट नहीं चलेगा. एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे ही बस चल सकता है, थोड़ा बहुत -+-5 डिग्रीज पे तो चल जाएगा, उसके बाद नहीं चलेगा. बिकॉज अगर आप घुमा दोगे तो आपका पूरा मिनूशा उल्टा आ जाएगा, राइट? सो दे कैन बी एडवांस्ड एल्गोरिथम्स वी कैन ट्राई एंड फिट, गोल गोल घुमा के कैन ट्राई एंड फिट, बट दैट्स द बेसिक आइडिया. आई होप इट्स क्लियर. सो दिस इज योर फिंगरप्रिंट. इसकी आगे सब डिटेल्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे. Then human computer interaction, HCI. So you must have seen कुछ games पहले इधर आ गए हैं, जैसे V का Kinect वगैरह है, ये सब यूज होता है in PS4, I think PS3. Kinect होता है सबका, you know this. So hand से games खेल सकते हैं, hand के recognition से. आजकल they are trying to play using eye movement. So gesture से आप एक कैसे हाथ बस कैसे घुमाया है उस तरह से आपको इंटरफेस मिल रहा है to be able to play your games. So
these kind of tasks come into the human computer interaction, where you're trying to model your computer to do certain things based on the gesture that you're programming it to recognize. Similarly, face recognition hoga. So automatically, you know, when you're entering a, अभी क्या है कि लोग कार्ड स्वाइप करते हैं while getting into companies, then they started using their fingerprints. Then in corona they are trying to use automatic types कि भाई आपका बस face recognize हो जाए automatically आपको अंदर जाने में, right? So those kind of things are still examples of HCI. Now what are the key stages of image processing? So the key processes ये वाले सारे explained है. Let's talk about one by one. सबसे पहले मेरे को अपना प्रॉब्लम डोमेन आइडेंटिफाई करना है. डोमेन क्या होता है बताओ भाई, कोई बताएगा क्या होता है डोमेन? एनीबडी? जिसमें सारा आउटपुट लाई करे. हाँ बेटा बोलो बोलो, क्या बोला? जिसमें सारा आउटपुट कंटेन करे मैम. अच्छा आवाज नहीं आ रही है ना. ओके खैर, एनीवेज प्रॉब्लम डोमेन क्या हुआ? वेयर आई एम ट्राइंग टू एनालाइज कि मेरे को किस फील्ड में काम करना है, मेरा क्या काम है. मैंने कहा सैटेलाइट इमेजिंग है जैसे, या मेरे को लॉ इन्फोर्समेंट, यू नो इतने सारे डोमेन्स पहले देखे थे, ये सब डोमेन्स ही है, ठीक है. वर्क, मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग. सो आई विल फर्स्ट आइडेंटिफाई माय डोमेन. उसके हिसाब से पहले तो हमें इमेज एक्वायर करनी पड़ेगी. यस, सो इमेज एक्विजिशन. So I will acquire the image. Acquisition के लिए कैमरा यूज करा, कोई भी इंफ्रा you have seen इतने सारा हमारा स्पेक्ट्रल बैंड है, जो हमारा एरिया होगा उसके हिसाब से हमने स्पेक्ट्रल बैंड चूज करके हमने इमेजेस एक्वायर कर ली. फिर उसके बाद आया इमेज इनहैंसमेंट. इनहैंसमेंट की अगर जरूरत है, अगर इस तरह की इमेज आ गई, यू कैन सी इसमें क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, इस वाली इमेज में विजुअली क्या फर्क है दोनों में? क्लियर नहीं आ रहा ये. हाँ करेक्ट, ये क्लियर नहीं है, थोड़ा सा डार्क डार्क सा है, डिफरेंस नहीं दिख रहा है. कॉन्ट्रास्ट कहते हैं इसका, हाई नहीं है. इसमें क्या हो गया, कॉन्ट्रास्ट अच्छा हो गया, एक एक बीन दिख रहा है, ये कॉफी बीन्स है. सो इसमें बड़ी क्लैरिटी आ गई. सो दिस इज नोन एज इमेज इनहैंसमेंट. देन नेक्स्ट स्टेप इज इमेज रेस्टोरेशन. अब इस वाले में क्या प्रॉब्लम है, इसमें भी कुछ नॉइज टाइप की है, इसको बोलेंगे नॉइज. कोई भी ऐसी चीज जो कि इनहैंसमेंट में क्या हो गया, हम इसी इमेज में हम कोई नॉइज नहीं हटा रहे हैं, राइट, इसी को इनहैंस कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट बेटर कर रहे हैं, शार्प कर रहे हैं इमेज. दिस इज नोन एज इमेज इनहैंसमेंट. रेस्टोरेशन में वी आर रिमूविंग द नॉइज. देन वी डू मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग. मॉर्फोलॉजी इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है, व्हाट डज मॉर्फोलॉजी मीन, कोई बताएगा? मॉर्फोलॉजी का क्या मीनिंग होता है? अरे गूगल पे ही सर्च कर लो भाई. व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? It is study of word structure. तो स्ट्रक्चर को स्टडी कहते हैं, है ना. मॉर्फोलॉजी मीन स्ट्रक्चर. तो अब मेरे पास जो इमेज है उसका मेरे को स्ट्रक्चर देखना है. अभी लेट्स सी फॉर अदर. इस तरह की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, राइट. हर इमेज का हमें मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर करना है. अब हम इमेज प्रोसेसिंग से मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर करेंगे. इसमें क्या हो गया, इस तरह के अप्रोचेस है. अभी इसका पूरा एक दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर व्हिच इज डेडिकेटेड टू दिस. सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द पर्टिकुलर इमेज दैट वी आर स्टडीइंग. सो इधर क्या करा हमने, जैसे ये इमेज लिया. नाउ अल्टीमेटली
आई वांट कि ये देखो क्या होता है जब हम ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस पे, यू हैव टू रिमेंबर मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग इज डन ऑन ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस, सो यू नीड टू हैव zeros and ones या 2 to 55 and 0 if you talk about 8-bit image. So blacks और whites होंगे इसमें. अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, वी वांट 1 पिक्सल लेंथ का सिर्फ हमारे पास फिंगरप्रिंट हो. Why 1 पिक्सल लेंथ? क्योंकि देखो यहाँ पे मोटा है, यहाँ पे पतला है, कहीं पे भी कुछ ऐसा होगा. जब हम स्टडी कर रहे हैं, जब हम इसका मैप बनाए, अगर हम पूरी की पूरी इमेज को मैप बनाना चाहते हैं, जैसे वो एक वन स्टूडेंट सेड कि पूरी इमेज को हम 0-1 में कन्वर्ट कर ले, तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक पूरी मैश आ जाएगी, ये पूरा एक मैट्रिक्स आ जाएगा ऑफ zeros and 255s, राइट? अगर हम इसको ऐसे लिखें एक डिवाइड करके पिक्सेल्स में, so every pixel will either be 0 or 255. Now to be able to do any kind of actually work on this, to be able to recognize it और आगे इसके हमें minutiae extract करने के लिए हम 1 पिक्सल की width लेते हैं. ठीक है? सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग करेंगे, जिसमें हम इसको बेसिकली कभी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, कहीं कुछ गलत आ गया है, नॉइज अभी भी है एट द लेवल ऑफ दिस, तो वो हट जाए, तो हम उसको पहले एक क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं. दीज आर वेरियस एप्लीकेशंस व्हिच यू विल स्टडी, बट अल्टीमेटली द गोल इज टू बी एबल टू गेट 1 पिक्सल लेंथ और 1 पिक्सल विड्थ इमेज हियर फॉर द एंटायर लाइंस. फिर उसके बाद सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन में क्या होगा कि सपोज अब ये है मेरे पास, ये इमेज है, हम लोग को तो बड़े क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो इसको अलग कर दो, इसको ये पूरा एक अलग इमेज है, ये X टाइप का है, ये Z टाइप का है. फॉर अस इट्स वेरी इजी, बट इन इमेज प्रोसेसिंग हाउ डू वी डू सेगमेंटेशन? कैन एनीबॉडी टेल मी कैसे कर सकते हैं? कोई सोच सकता है? अच्छा, हिस्टोग्राम्स किसी को पता है क्या होता है? What are histograms? हम 3D नहीं, हिस्टोग्राम बेटा 3D नहीं होता है. हिस्टोग्राम ये होता है मैम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. हाँ बेटा, मैम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हम डेटा का ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करते हैं बार्स के फॉर्म में. करेक्ट, ओके, दैट्स ओके, अंडरस्टूड. अब देखो, सपोज इन सिंपल लैंग्वेज आई विल एक्सप्लेन यू. हाँ, हिस्टोग्राम में सपोज बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ 2-bit इमेज. 2-bit इमेज में 3 तक जाएगा, राइट? ये 2-bit इमेज है. 2-bit इमेज में क्या होगा, 0 to 4 बस वैल्यूज होंगी. अब इसका मैं एक हिस्टोग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ. आई विल से 0 1 2 3 इतने ही लेवल्स होंगे बस. अब मैंने काउंट करा कितने पिक्सेल्स है 0 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इधर भी हम कर देते हैं. सपोज ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है, ऐसे है. सो 9 पे यहाँ पे कहीं होगा. सो ये 0 का हो गया, सॉरी तेरा मेरा बन गया. 1 कितने हैं? 1 तो एक भी नहीं है. 2 कितने हैं? 6 2s है. गिनने पा रहे हो कि नहीं? सब लोग देख पा रहे हो? यस मैम. सो यस मैम. 6 ये है, तो यहाँ तक बना दिया. और 3 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो ये 15 तक इधर जाएगा. ऐसे ये हो गया हिस्टोग्राम. अंडरस्टूड? आप सबको समझ में आया? हिस्टोग्राम में क्या हुआ, हमने फ्रीक्वेंसी देखी कितने हैं. अब हमें ये नहीं पता ये पिक्सल कहाँ पे है, बस इतनी पूरी इमेज में इतने पिक्सेल्स हैं, कहाँ पे है ये नहीं पता. अब इस हिस्टोग्राम को कौन कौन जस्टिफाई कर सकता है? बताओ, समझ में आ रहा है क्या होगा? ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट क्या होगा, मेरे को बता सकते हो? देखो ये 255 है, इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ. इस हिस्टोग्राम को समझने की कोशिश करो और मेरे को समझाओ. हाँ, अब बताओ क्या है ये? कोई बता सकता है? ये दिख रहे होंगे वैल्यू 0 63 127 191 255.
कितने बिट इमेज है ये वाली? 8 bits. Correct, because you have 256 levels, so that is why it is an 8-bit image. अब इसका क्या मतलब है? ये जो डार्क होंगे ये कौन से वैल्यूज होंगी? जो यहाँ से 63 तक दिख रहे हैं मेजर, ये सब ब्लैक वाली चीजें होनी चाहिए जो बहुत डार्क ब्लैक वाले के पास है ना। हम लोग को ब्लैक लग रहा है, हम लोग को पूरा जेट ब्लैक लग रहा है, बट ये 0 से 63 के बीच में है, तो ये सब ब्लैक वाले पार्ट आ गए। अब ये बैकग्राउंड में ये देखो 191 से 256, 191 से 256 कौन सा पार्ट होगा? कौन से पिक्सेल्स होंगे बेटा? बैकग्राउंड कैसा है? वाइट है ना? वाइट। तो वाइट वाला बैकग्राउंड जो होगा वो ये होना चाहिए कायदे से। बैकग्राउंड के जो वैल्यूज है, अगर हम इसको डिवाइड कर दें इस इमेज को, बेटा नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछ लेना, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हाँ, सो अगर हमने इस इमेज को ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया पूरा एंड तक, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे पिक्सेल्स होंगे, तो ये क्या होगा? ये इसकी वैल्यू देखो कहीं कहीं ना कहीं इस रेंज में होगी, और ये वाले सारे जो होंगे इधर, ये सारे इस रेंज में होंगे। यस और नो? यस मैम। तो अगर हम इस इमेज को डिवाइड कर दे तो क्या होगा? हमें ब्लैक वाला पार्ट यहाँ मिल जाएगा, बैकग्राउंड वाला पार्ट यहाँ मिल जाएगा। सो दिस इज नोन एज सेगमेंटेशन। हमने बड़ी सिंपली सेगमेंटेशन कर लिया बेस्ड ऑन व्हाट? हिस्टोग्राम। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. Very simple example. This is known as obtuse segmentation. आगे पढ़ोगे, it is based on histogram. तो अगर हमारा सीन ऐसा है कि हमारा बड़ा क्लियरली जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसका अलग कलर लेवल है, तो हम उसको बड़े आराम से हिस्टोग्राम में क्लियरली हटा सकते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये देखो एग्जाम्पल कौन सा लिया है? आइरिस का, जो मैंने दिया था। तो हमने क्या करा? पेटल लेंथ और पेटल विड्थ को इधर प्लॉट कर लिया। इससे हम ट्राई करके मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर इधर आ रहा है, देखो अब ऐसे हम इसको सेगमेंट करने की कोशिश करते हैं कि ये सारे ग्रीन जो ट्रायंगल्स हैं ये ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, फिर ये ऐसे डिवाइड कर सकते हैं फर्दर। ये नेचुरल सा दिख रहा है कि यहाँ पे सारे स्क्वायर्स हैं, यहाँ पे हो सकता है कुछ कुछ एरर्स हो, बट मेजरली करेक्ट होगा। और ये वाला ऐसे है सर्कल टाइप का। ये हमारा सेगमेंटेशन है। अब हमने सिर्फ नए वाले का यहाँ पे प्लॉट कर लिया कि कहाँ वो फिट कर रहा है, उस हिसाब से हमने इसको असाइनमेंट दे दिया इन तीनों में से। क्लियर है? यस मैम। Yes, तो ये ma'am. क्या हो गया? दिस इज रिकग्निशन। हमने मॉडल बना लिया रिकग्निशन का। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन। कोई इमेज है, उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट करा। अब हमने क्या करा? इसके सिर्फ पॉइंट्स डिफाइन कर दिए। इजी रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज इमेज बीच बीच में हमें तो पिक्सल पिक्सल पता है, हमें बीच की कुछ वैल्यूज नहीं पता है, बिकॉज वी आर बेस्ड ऑन ओनली द पिक्सेल्स। सो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यहाँ पे उसका एक चेन लेंथ बना दिया, चेन बना दिया। फिर वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ये सब आगे हम पढ़ाएंगे। एवरीथिंग यू विल गेट टू नो। चेन कोड है, लेफ्ट डायरेक्शन है 0 बता दिया, ऐसे घूम रहा है, 8 ही डायरेक्शन तो होंगे हमारे पास जाने के लिए। इसी तरह से तो डायरेक्शंस होंगे ना। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा डिफाइंड है तो नेक्स्ट पॉइंट इन्हीं चारों में से कहीं से, इन 8 में से कहीं से आ जाएगा। हमने उसी को हिसाब से 0 कर दिया। तो ये हमारा सपोज इधर जाने का 0 है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है। जब हमने ऐसे कोड कर दिया तो हमारा चेन कोड अपने आप ऐसे निकल आएगा। तो हमें सिर्फ आगे क्या बताना है? स्टार्टिंग पिक्सल बताना है और आगे कोड दे देंगे 1 2 3 4, तो हम अपने आप पूरी इमेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमें पूरा ये, बिकॉज इसको पिक्चर में एक्सप्रेस करना कंप्यूटर में बड़ा डिफिकल्ट है, हमें नंबर्स चाहिए। सो हमें नंबर में हमने स्टार्टिंग पिक्सल देके उसके बाद ऐसे अगर कोडिंग कर दी तो हम पूरी इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. एक्सप्रेशन हो गया, कंप्रेशन, एवरीबॉडी, दिस इज नॉट एवरी इमेज प्रोसेसिंग की स्टेज। यू हैव टू अंडरस्टैंड, हर की स्टेज बस यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। ये दोनों एक इंट्रिंसिक पार्ट है, बीच बीच में कहीं यूज हो सकते हैं, बट दे आर नॉट एसेंशियली अ पार्ट ऑफ एवरी इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम।
सो दैट इज वाई इनको अलग रखा गया है. So compression है where we are trying to reduce the size of the image, but we are not trying to change. एक होते हैं lossy compression, एक होता है lossless और एक होता है lossless. कोई एग्जांपल दे सकते हो लॉसी का और लॉसलेस का? लॉसी कंप्रेशन जैसे हमारा जेपीग है, पीएनजी है. अब एक्चुअली जो भी हमारे नेट पे यूज होती है, वेब सेफ इमेज, वेब में कौन कौन सी इमेजेस यूज होती है इंटरनेट पे? मैम जेपीजी, पीएनजी, जेपीईजी. हाँ, जेपीजी और जेपीजी सेम होता है. जिफ है ना? यस मैम. सो ये तीनों क्या है? दे आर लॉसली कंप्रेशन. हम लोग के लिए एक्चुअली ये लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन है, बट हमें इतना कोई विजिबल चेंज नहीं दिखता है और बहुत छोटी हो जाती है इमेज. एंड व्हाट वी वांट on web, we want very small images because ultimately you're using your data to upload and download these images. Whenever you're seeing some image, you're actually downloading that much data. So that is why we want it to be small. So that is why it is used in a lot of algorithms these days. Then you have color image processing. इसका बहुत ज़्यादा application होता है in remote sensing, in medical image processing. Because हमें क्या चाहिए कि हम ऐसे डिस्टिंग्विश ग्रे लेवल्स को नहीं कर सकते जितने अच्छे से हम इनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. कैन यू सी सो मेनी डिस्टिंक्शंस हियर? इस इमेज में इतने डिस्टिंक्शंस दिख रहे हैं जितने इसमें दिख रहे हैं. इसमें कितने कलर्स दिख रहे हैं? देखो येलो दिख रहा होगा, ग्रीन, रेड, वाइट, ब्लू. तो ये सब एक्चुअली डेंसिटी पे डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी लेवल पे. बट इतने सारे लेवल्स हमें इधर नहीं दिख रहे हैं. इधर हम बोल सकते हैं कि ब्लैक है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चेंज है, व्हाइट है. तीन ही टाइप के दिख रहे हैं. So that is why color image processing is heavily used to be able to understand the systems better. But again, they are not a key stage part of image processing. So this brings us to the end of this summary class. अब next में we will start using, अब हम लोग एक एक part से ऐसे चलते चलेंगे और जहां तक जा पाएंगे वहां तक जाएंगे. Is it okay? Any questions? Last 5 minutes for questions. किसी को कुछ पूछना है बेटा? नो मैम. ओके, सो आई विल एंड द क्लास. फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग जनरली 11:15 से रख लेंगे. हाँ, जनरली 11:15 से स्टार्ट कर देंगे सो दैट कॉलेज का भी काम हो जाएगा. सो इट विल बी बेटर. ओके, जैसे आज स्टार्ट करा था स्टार्ट कर लेंगे. ओके.